Hello students, and yes, today we are starting volume and surface area, right? So volume and surface area, what has to be done, that many students think of this chapter as only calculations and nothing else, but this chapter has a lot of conceptual things. If you will miss it, the concepts and how the formulas have come, because in this chapter you will have to make your own formulas for certain shapes, and the shapes will be different, that will be combination of shapes, so you need to make your own formulas, and obviously from the for basic formulas that you know, so you should know the concept behind it. So we are starting this, right? So this chapter comes under the unit mensuration. Clear? And this consists of 10 marks. Okay, so we are studying for 10 marks. It also has one more chapter, area of circles, I believe. Area of circles, yes. So one more chapter is there, total included mensuration. Okay, let's start. What is surface area? Now, as the name suggests, surface and area, right? So the chapter this we are dealing with deals with three-dimensional objects. Now what are three-dimensional objects? Three-dimensional objects are the objects, are basically the solid figures, are the objects which have length, width and height, right? Total 3 dimensions, and they also take up space. So either you call them as 3D object or you call them as solid figures, right? So if you know that solid figures are made up of plane figures, है ना? तो the plane figures जिससे ये बना है ना? If we find out the area of the surfaces of that 3D object or that solid figure, then that becomes the surface area. Clear? ठीक है? So there are three things in a solid, you know. There are faces, there are edges or vertices, है ना? And there are vertices, है ना? Edges mean the side, faces means the face that we are talking about. Clear? So what is a polyhedron? देखिए solids जो है ना पॉलीहेड्रॉन और नॉन पॉलीहेड्रॉन होता है. अभी पॉलीहेड्रॉन मीन्स द शेप्स, है ना, सॉलिड. हाउ अ सॉलिड इज फॉर्म्ड? लाइक इफ यू टेक अ ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन. इफ यू कीप मेनी ट्रायंगल्स वन ओवर द अदर सेम काइंड ऑफ, व्हाट यू ऑब्टेन? यू ऑब्टेन अ व्हाट? प्रिज्म, है ना. क्लियर? इन द सेम वे, when you keep many rectangles, pages of your copy are rectangles, you keep many rectangles one of the other, what you get? You get cuboid. Clear? So that's what polyhedron is, a solid that is made from polygons only. Like we have example, we have a cuboid, we have a cube, but we also have shapes like sphere, which are also solid. Sphere, we have hemisphere, है ना, we have cone, we have cylinders. As we know, these have curved surfaces. So because these have curved surfaces, these are not made of polygons, right? But the polyhedrons are one that are made of polygons, and these are non-polyhedron solids, है ना. So their surface area is found out by calculus, है ना, and finding by double integration, which is out of our scope for now, है ना. We'll read it in high classes. Clear? So we for now will just know that there are solids called as polyhedron and non-polyhedron. Polyhedron, those are made entirely of polygons, and sphere, hemisphere, cone, cylinder, जिसके भी curved surfaces होंगे, that are non-polyhedron. Okay. Okay, so polyhedra is plural of polyhedron, right?
we know the Euler's formula. F stands for the number of faces, V stands for the vertices, E stands for the edges, है ना? So number of faces plus vertices minus number of edges equal to 2, and this has to be valid for all the solids. With solids only polyhedron, है ना? Non-polyhedron this will not be valid. Only for solid polyhedron this will be valid. I hope it is clear. ठीक है? Polygon, as you know, is a closed figure, right? The first polyhedron that we are looking at is a cuboid. Okay, this is a cuboid, right? This is a cuboid. Now what you can see, this part, if you take as A, if you label it as B, this as C, है ना? Okay, let's label this as CD, A, B, C, D. And this as E and this as F. So if you take AB as L, BC as height and BE as breadth, so can you find three dimension L, B, H? There are 3 dimensions. Okay, so can we see 3 dimensions? Yes, so it is a 3D object, right? But how to see from which polygon this is made up of? So let's see by this diagram, है ना? Now if you take a matchbox, this shape resembles like a matchbox. You take a matchbox, this is the base, just tear it off from this side. This is the side wall, है ना? This is the side wall 1, and this is the wall just ahead of that wall, है ना? This is also a side wall. We are just tearing off this matchbox. Side wall 3 and this is side wall 4, है ना? This is actually called as a net diagram, है ना? What we are doing, all the polygons from which this solid is made, we have just converted into that, है ना? And this is the top. Clear or not clear? Okay, so if this was the length, this is also the length. If this was the breadth, this is also the breadth, right? We will bring this to the top, right? So this will be the my wall, जो कि ये height होगा. This is the height, this is the height, and this is also the height. This is also the height. This is also the height, and this is also a height. This is also height. This is also height. This is breadth. This is the length. This is the length. This is also the breadth. So is it clear? है ना? So we have how many faces? How many faces we have? We have one base. We have one top. We have faces. One face, 2, 3, 4, 5 and 6. So in this cuboid, है ना, we have how many walls? है ना, we have 4 walls. We have one top, 4 walls, one top, one bottom. 4 walls plus top plus bottom, है ना? So now we can see that these all are rectangles, है ना? These all are rectangles. In the first rectangle, what is this? This is length, this is length, this is height, this is height. So in together we got 6 rectangles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rectangles we got, है ना? This is the base. You don't call your floor, है ना? रूम में अगर फ्लोर को दीवार बोलते हैं क्या? No, this is called the base. This is called the top, or you call it as ceiling. Either you call it as ceiling or you call it this as floor. This is not a wall. Do remember that this is not a wall, right?
So let's find out the area of the walls one by one, है ना? So what are the four walls? This is a rectangle. So four walls. First wall LH, है ना? Next, just the wall just ahead it, है ना? This is also LH. Okay, two walls we found out. Now this one. This is B, this is H. So the area will be BH. Now remember what we are finding out? We are finding out surface area. And what is surface area? The area of the surface of this cuboid. Abhi, this cuboid is made up of these surfaces only, right? This is BH. So this will also be BH. This is what? This is the area of four walls. Remember, this is the area of the four walls. What is the area of the top? Top is L into B. The area of the top is L into B. What is the area of the floor or the base? That is also L into B. है ना? Bottom is L into B. Clear or not clear? Right? So area of four walls we got LH plus BH 2 times, है ना? So this will become 2LH plus 2BH. Area of four walls. We give a special name to the area of four walls, and that is called as LSA, or we also know it as lateral surface area. LSA means lateral surface area. Whenever I am saying lateral surface area, I am only talking about the area of the four walls, right? And the formula that we get of area four wall is 2LH plus 2BH. Is it clear? Okay. Now next we have lateral surface area. We got it. Now we have the TSA, or we call it as total surface area. Now what is total surface area? Total surface area, as it suggests, it is total, right? Here we took only of the four walls, but total how many faces we have? We have 6 faces. So it becomes LSA plus area of ceiling plus area of floor. The area of ceiling is LB and floor is also LB, right? So the formula that we obtain for LSA is 2LH plus 2BH. Or you can also write as 2 to take 2H common, as they have in both, 2H L plus B. Now this is how you have to derive the formula, and TSA is total surface area is 2LH plus 2BH plus 2LB, right? So now you take 2 common, here you take LH plus BH plus LB. Now this becomes the LSA and TSA of the cuboid. Is it clear? Let's see what happens. See, you just take out the top, what it is. If this is L, just see once more, this is L, this is L, right? This is B, this is B, this is H, this is H, right? This is B, this is L, this is H. Clear? So let's see one by one. Top, right? L into B. So this will become L into B. Okay, next. This is also B, L into B. Okay, next. This is L, right? And this is H. So this will become L into H. Is it getting clear? Right?
and that's why I'm doing it one by one. Okay, this is B into H, B into H, right? This is also L, this is L, this is H, LH. Clear? Okay. This is also B into H. Can you see the 6 faces? This is the top, this is the bottom, this is the back, front, side. So 4 walls, है ना? One top and one bottom. So the formula will be C, top plus bottom plus front LH, front wall, back wall, side wall plus side wall. Add up the area, है ना? What is it? Length into breadth is area of the rectangle, and these are the rectangles that we have obtained. So we'll get 2LB plus 2LH plus 2BH. Is it clear? This is what is the total surface area of cuboid. If you need to find out only the lateral surface area, so we will not add the top and the bottom. When we are talking about LSA, we will take only the area of the 4 walls. That will be LH plus LH, LH plus BH plus BH. Only the 4 walls. It will become 2LH plus 2BH. I hope it is clear. This is total surface area and this is lateral surface area. Clear? Okay. This is what we had to do. Okay. Now again the net diagram in a different way. So if this is the base, this will close from this side, 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 and this will form the, this is the side wall, this is the side wall, this is the front wall, this is the back wall, and this is the top wall. Clear? Clear? So you will get again 2C, this is L, this is B, 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 H, H, L, H. Clear? I hope you got the formula and understood everything. This is what, right? So what is the volume we took? What is the volume of cuboid? What is the volume? So first we should know what is volume, right? Okay. Now there are two terms. When we talk about volume, there are two terms. One is volume and the other is capacity. They both are not the same terms. Many people misunderstand it. They are not the same terms. They have many differences. Yes, the concept is the same, but they are not the same terms. They both mean different things. Clear? So, what is meant by volume? Volume implies the total amount of space covered by an object, right? So volume means the total amount of space covered by an object. Whatever space it takes in the 3-dimensional space, whatever space the object occupies. And 3-dimensional objects take space, and 2-dimensional object take up area. So the total space that is occupied by any object is called as volume, right? But what is capacity? Capacity refers to the object's ability to contain a substance. Like if I fill a glass with some amount of water, then that is the capacity of the glass. The amount of water that I can fill in that glass, so that glass is full. That is the capacity of the glass.
or the bottle or the 3D shape, right? Clear? So basically I think you have understood, and it is the capacity is the potential amount of substance which an object is able to hold, right? Generally unit of volume is cubic centimeter, cubic meter, but capacity is measured in liters or gallons, right? And very important thing, solid objects, hollow objects, both have volume, but can a solid object hold water or hold milk? No, we always require hollow objects for holding some liquid or some other things like that. Clear? है ना? Okay. This was the difference between volume and capacity. We'll understand it more. Like, see, you see a solid over here, है ना? It is a solid, है ना? It is not hollow, but inside there is a cylinder, right? Now what I do, I drown this object, है ना? I drown this cube in the water, so it will displace some amount of water, है ना? If I put in this big container this cube, so it will displace some water, है ना? So that will be its volume, the amount of space occupied, how much space is occupied. But the thing is, it has a cylinder inside it, but because it is closed from all sides, because this object is closed from all sides, it doesn't matter whether you have put inside a cylinder or whatever. Clear? This object is closed from all sides, so it doesn't matter whether you have put inside the cylinder or what. Clear? So when I drown this object in any other thing, so that will give me my space occupied by this, and that will be in meter cube. But if that lid is open, if this lid is open, and we have two cases, we have the same cube, one without the cylinder and one with the cylinder, both lids are open, है ना? And it is hollow. But one has a cylinder inside it and one does not have a cylinder inside it. No, generally the amount of water that I will fill into it will be less than the amount of water that I fill into it. It is of the same edge length, है ना? They both are the same, identical, but one has a cylinder, one does not have a cylinder. So obviously the capacity of both will be different. It will be able to occupy less water or less fluid, because cylinder also has occupied some space into it. Only the space which is left without the cylinder will be filled with water, but here the capacity is more. Clear? So I think volume and capacity, that's why, are not the same. Clear? And a hollow object has capacity, a solid object cannot have a capacity. Clear or not clear? Clear? That's what we had to see. Clear? See this diagram once, है ना? This is the 3D object. Clear? The cube and the cylinder is inside the cube. Okay, so I hope this gives you a clear idea, है ना? This is the solid that we are talking about. Okay, let's move on, है ना? So the term volume is used to mean the amount of 3 dimensions which is occupied by the matter, nothing but the space taken up by the substance. Clear? Volume, how it is found out? By multiplying length, width and height. Clear? Unit we know. ठीक है? But capacity
Capacity is what? Capacity is the ability of the hollow object to hold substance. How much space is available in the container that can be filled with matter? The total amount of matter that can be contained in the object is the capacity of the container. ठीक है? When we fill air or fluid in hollow object, it takes the shape of the container. Obvious, right? Now we get on to the cube after we have understood the concepts of lateral surface area, total surface area, and also volume. है ना? So we look at each of the shapes one by one. So what type of shape cube it is? Cube is also a polyhedra. Clear? है ना? Okay. Now see. Now we'll do the reverse process. I have all these are square. This is also a square. है ना? All are squares. All are square. This is also a square. This is also a square. This is also a square. है ना? This is also a square and this is also total we have 6 squares. है ना? So let's make, है ना? I'm lifting it from that side. I'm lifting that face from that side. Okay, that's from this side. है ना? This from this side and this from this side. ठीक है? What do we form? Form a cube, right? Cube, है ना? बन गया ना cube. This is what cube is all about. So actually, what do we observe? है ना? We observe that this is the top, this is the bottom, front wall, back wall, side wall. Now these both are side walls, right? All are square, so area of this will be a square, area of this will be a square, area of this will be a square, area of this a square, area of this a square, area of this a square. So again what we did, we converted a cube into its faces. All its faces, what we can see are squares. So again surface area concept tells us that the area of the surfaces, this is the top surface, bottom surface, side wall surface, front surface, back wall surface, side wall. So LSA told us what? LSA told us area of 4 walls. Right? Area of 4 walls. So area of 4 walls, what we obtain? 4a square, 4 walls, because each area has an area of a square. Then we come on to TSA. Now what is TSA? It is total surface area, which is LSA plus top plus bottom. So we get 6a square. Clear? Now volume. Now volume we find out by multiplying the length, breadth and height. Now because it is a cube, all the dimensions are the same. The length, breadth, height, everything is a. So a into a into a. What do we obtain? We obtain a cube. This is what is the volume of this cube. Is it clear? है ना? Clear? This was the concept behind this cube. Clear? है ना? Everything was L. है ना? You can call it L, you can call it A. This is also A, this is also A, this is also A. So A, everything was A.
Clear or not clear? And this is the net diagram of the cube, है ना? So if this is also correct net diagram, okay, let's check. This is the base, so this will become my, what it will become? It will become my wall. Clear? And this will also become my wall, है ना? This will become the front wall. I will close it like this, and this will accompany from this side. This will close it from this side. This wall, front wall is this one. This one is the front wall, right? And this is the side wall. This is also the side wall. Huh? Clear? Because it is directly attached with the base. है ना? Clear? So this will become my top, and this will become my back wall. Clear? So you have to visualize it, how it is possible. Clear? Okay. After cuboid and cube, let's get back to right circular cylinder. Clear? So what is the case of right circular cylinder? Now in case of right circular cylinder, if you see the faces that it has one rectangular face and two circular faces. So this is the top, this is the bottom, and actually this is the wall. You know, here we can't say 4 walls because it has only one wall. Okay? So here the term that we used for 4 walls was LSA. Now here, because the wall is curved wall, so here we don't call it as LSA, we call as curved surface area. है ना? We call it what? We call it curved surface area. Clear? I'll show you once how it is obtained. So can you see this figure? है ना? What this figure suggests? Like if it was whole circular, है ना, तो ये इसका radius r होगा, right? Now when you open it, है ना, when you open this circle in a straight line, so this becomes like this. So we know that the circumference is 2 pi r. So this will be what? This will be 2 pi r, and this is the height of my cylinder, right? So that's what, है ना? Now the formulas that we know. If it was like this, I cut it apart, I got this. And I got this, and I got this, and I got this. This is my top, this is my bottom, and this is my wall. You also know the top part is a circle of radius r, so the area of the top part will be pi r square. है ना? Area of bottom will also be pi r square. This is wall. This is how much? This is 2 pi r. And this is how much? This is h. So actually this is a rectangle and this is a circle. So rectangle का area क्या होता है? 2 pi r into h. Is it clear? So we get the formula of CSA of cylinder, or the wall of the cylinder, curved surface area, is 2 pi r into h. Formula that we get is 2 pi r into h, or you can say that 2 pi r h. TSA of cylinder will be CSA, है ना,
plus top area of top face plus area of bottom face. Clear? Easy. 2 pi RH plus 2 pi R square. Clear or not clear? This is what we learnt. Okay, now can we take common? Yes, we can. 2 pi R take common. Here we get H plus R. So we get TSA of cylinder also, CSA of cylinder also. Next, there is another term called as volume of cylinder. And we have seen about volume. How much liquid it holds. That is capacity, na? How much space it occupies the cylinder, that is the volume of the cylinder. Okay. Now, volume of cylinder. How we define volume of cylinder? It is pi r square into h. Right, because h is the height of the cylinder. It means that if you placed pi r square over pi r square into pi r square till h, then you get volume of cylinder. That's what is cylinder is. Clear or not clear? So volume of cylinder is pi r square h, and these two formulas we get to know. Clear or not clear? So now we look at the hollow right circular cylinder. Right? So we saw right circular cylinder. We'll now look at hollow right circular cylinder. What is hollow right circular cylinder? है ना? तो ये देखिए, इस टाइप का कुछ भी होता है ना, इट इज द शेप ऑफ अ सिलेंडर बट इट इज हॉलो. राइट? इट इज हॉलो. व्हाई इट इज हॉलो? बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन पुट इन समथिंग हियर, है ना? क्लियर? ओके. नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर? नाउ यू कैन नो कि आपको ये सरफेस दिख रहा है यहाँ पे, है ना? ये सेंटर है. यहां से ये मेरा इंटरनल सर्कल है ना, ये इंटरनल सर्कल है, इसका सेंटर तो होगा. इंटरनल सर्कल ये आउटसाइड सर्कल है ना. तो ये मैं मान ले रहा हूं कि ये मेरा आर आई है और ये मेरा रेडियस जो है ये आर आउट. क्लियर? तो यहां पे आपको ये दिख रहा है, ये क्या होगा? ये आर आउट माइनस आर आई, मतलब outside radius minus inside radius. This is what we call as the thickness. Clear? This is what we call as the thickness. Now here, as you can see, this is the outside radius, this is the inside radius. तो यहाँ पे thickness is more, है ना? इतना thick है. क्लियर हो रही है बात? तो यही है थिकनेस. या और अगर आप इसको डायमीटर के फॉर्म लिखें तो आप इसको स्ट्रेट यहां तक करेंगे तो ये आपका आउटसाइड डायमीटर है ना. डायमीटर के टर्म्स में करते हैं. रुकिए मैं इसको यहाँ पे रब करता हूँ, है ना. थिकनेस क्या होगा? आउटसाइड रेडियस माइनस इनसाइड रेडियस, है ना. इसको डायमीटर के टर्म में करता हूँ. तो ये यहां से यहां तक क्या है मेरा थिकनेस? यहां से यहां तक क्या है? ये भी थिकनेस. ये है मेरा सेंटर. यहां से ये क्या है? इंटरनल डायमीटर. यहां पे ये पूरा क्या है? आउटसाइड डायमीटर. सो हम लोग क्या लिख सकते हैं? आउटसाइड डायमीटर इक्वल टू इनसाइड डायमीटर प्लस थिकनेस 2 टाइम्स, सो 2t, है ना. So outside diameter minus inside diameter by 2 equal to thickness. अगर आपको thickness दिया, आपको diameter निकालना, तो you can find out by this method, है ना. So thickness का फॉर्मूला 2 आ गया, R नॉट माइनस आर आई इक्वल टू थिकनेस. क्लियर हो गई बात? ठीक है. तो बस यही तो है ना. डन. तो ये चीज आता है आपका हॉलो सिलेंडर में डिफरेंस. तो एक और चीज है, राइट. अभी हम लोग फिर इसका ना टोटल सरफेस एरिया और टोटल, आई थिंक ये क्लियर हो गया. मैं रब कर दे रहा हूँ. ओके. नाउ हम लोग क्या करते हैं, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं.
है ना। तो कर्व सरफेस एरिया में आपको पता था कि यहाँ पे इनर कर्व सरफेस एरिया और आउटर कर्व सरफेस एरिया दो हो गया ना, दोनों का अलग अलग होगा ना डायमेंशन, क्योंकि इनसाइड रेडियस अलग है और आउटसाइड रेडियस अलग है। तो हम लोग अभी देखे थे ना कि स्फीयर के सिलेंडर के केस में CSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH। तो यहाँ पे CSA क्या होगा, 2πRI जब हम ले रहे हैं तो हो जाएगा इनर CSA और इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ऑफ हॉलो सिलेंडर। और अगर हम CSA में हम लेंगे कैपिटल R और बिगर R, 2πRO आउटसाइड का, तो हो जाएगा क्या, आउटर कर्व सरफेस एरिया। हो गया क्लियर। तो कर्व सरफेस एरिया का हो गया यही फॉर्मूला, क्लियर है। अभी यहां पे एक बात समझना है हमको, है ना, कि अगर आप टोटल सरफेस एरिया लेंगे, है ना, अगर आप टोटल सरफेस एरिया लेंगे तो हॉलो सिलेंडर का, तो ध्यान से देखिए क्या आपको लेना होगा, आपको क्या ये एरिया भी लेना पड़ेगा, ये जो ये वाला एरिया है ना, टॉप और बॉटम तो लेना ही होगा, ये भी लेना होगा। तो क्या ये समझ में आ रहा है ये बात, ठीक है। तो अभी हम लोग को जो टोटल सरफेस एरिया लेना है, तो हम लोग को टॉप का भी लेना है, सीलिंग का भी लेना है ना, क्लियर है। तो CSA के केस में हम लोग टॉप और बॉटम का नहीं ले रहे थे, तो वहां पे नहीं जुड़ा वो, है ना। तो अगर हम TSA में लेंगे तो मेरा टॉप में तो यहाँ पे कुछ है नहीं, दिस इज एम्प्टी, सो ये तो ऐड नहीं होगा। तो अभी हम टॉप टोटल सरफेस एरिया का क्या लेंगे, टोटल सरफेस एरिया का लेंगे CSA प्लस, है ना। तो CSA क्या होगा यहाँ पे, अभी CSA में हम तो ये इंटरनल भी लेंगे और एक्सटर्नल भी लेंगे, है ना। जो भी सरफेस आपको दिखेगा वही, तो ये भी सरफेस हमको दिख रहा है, ये भी सरफेस हमको दिख रहा है, तो हम दोनों को ऐड अप करेंगे ना, ओके। और टॉप में ये वाला एरिया निकालने के लिए आप क्या करिएगा, क्या बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल का एरिया करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा, है ना। तो बड़ा सर्कल का एरिया कितना है, πr², छोटा के πr0², और ये πri², है ना। लेकिन टॉप और बॉटम दोनों है ना, तो एक बार पाई ले लेते हैं, r0², मतलब आउटसाइड रेडियस, है ना, ये टॉप हो गया, और बॉटम, क्लियर हो रही है बात। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया आपका हो गया। आप ले लीजिए कॉमन 2πH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, RO प्लस RI प्लस 2π RO² माइनस RI², हो गया क्लियर, ठीक है। तो ये है TSA। हम लोग यहाँ पे ये दो एक्स्ट्रा टर्म क्यों है, क्योंकि हम लोग को टॉप और बॉटम भी लेना है, जो कि हम लोग CSA में कंसीडर नहीं करते, हम लोग केवल वॉल का लेते हैं। तो ये तो वॉल था, तो इनर वॉल का होगा तो इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर वॉल का होगा तो आउटर कर्व सरफेस एरिया, हो गया क्लियर, ठीक है। तो यहीं पे आपका डिफरेंस आता है बिटवीन अ हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर, क्लियर, ओके। नाउ वन मोर थिंग इज लेफ्ट, वो क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, अब वॉल्यूम, अब ये कॉमन सेंस है कि अगर ये पाइप है जो कि दोनों साइड से ओपन रहेगा, तो वो भी तो हॉलो सिलेंडर ही है ना, तो उसमें आप कुछ भी भर सकते हैं क्या, नहीं, तो वन साइड तो क्लोज्ड होना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वॉल्यूम होगा कैसे, हम जैसे यहाँ पे लेते हैं RI ना, और ये क्या होगा RO। तो बस
हम सॉलिड सिलेंडर का जानते थे ना फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इक्वल टू पाई आर ओ स्क्वायर एच माइनस पाई आर आई स्क्वायर एच। ये हो जाएगा मेरा वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। क्लियर और नॉट क्लियर, है ना। यहाँ पे हम पाई आर स्क्वायर एच लिखे थे, तो यहाँ पे मेरा पाई आर ओ स्क्वायर एच माइनस पाई आर आई स्क्वायर एच, क्योंकि ये पार्ट में तो आपका कुछ भी फिल नहीं कर पाएगा, नहीं तो सॉलिड है ना, ये तो फिल्ड है। क्लियर और नॉट क्लियर, समझ में आ गई बात, है ना। बस यही तो है, डन, ठीक है। नेक्स्ट वी कम ऑन टू द राइट सर्कुलर कोन, है ना। तो ये कोन तो ये तो सबने खाया ही होगा, है ना। तो ये कोन में देयर सम स्पेशल नेम्स, है ना। ये हो जाता है आपका स्लैंट हाइट। ये क्या कहलाता है? स्लैंट हाइट। फिर से बना देता हूं मैं यहाँ पे कोन। अगेन इसका जो वॉल है ना, ये कर्व्ड सरफेस है। वॉल कैसा है? कर्व्ड सरफेस। और ये सर्कुलर है, ये फेस सर्कुलर है। इसके दो फेसेस है, ये जो है ना, तीन फेस है एक्चुअली, एक वॉल और एक टॉप और एक बॉटम। लेकिन ये जो फेस है यहाँ पे है, ये तो पॉइंटेड है ना, तो ये कुछ फेस है ही नहीं। तो एक सर्कुलर फेस और ये वॉल, ठीक है। इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइट। दिस स्लैंट हाइट, दिस हाइट एंड दिस इज द रेडियस। बिकॉज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि 90 डिग्री है, तो व्हाट वी गेट, एल स्क्वायर हाइपोटेनस हो गया इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो एल इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। एंड अभी हमारा जो सरफेसेस है, कर्व सरफेस एरिया इसका निकालते हैं, कोन का। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इंटू आर इंटू एल, है ना। पाई इंटू आर इंटू एल। अभी टीएसए की बात करते हैं। टीएसए क्या होता है? सीएसए प्लस सीलिंग प्लस टॉप। तो टॉप का तो यहाँ पे 0 है, सरफेस है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? पाई आर एल। ये तो हमारा सर्कल है ऑफ रेडियस आर, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो टीएसए का हो गया क्या? पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर। क्लियर हो गई बात, ठीक है। एंड नेक्स्ट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। क्लियर। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर एच। तो जो पाई आर स्क्वायर एच है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है क्या? है ना। तो अगर मेरे पास आर रेडियस और एच हाइट का सिलेंडर हो, तो उसके अंदर हम लोग एक कोन फिट करेंगे जो कि सेम हाइट और सेम रेडियस का हो, लेकिन उसका वॉल्यूम कितना होगा? उसका 1/3 होगा, है ना। यही तो कहता है कि लाइक आपके पास एक सिलेंडर है जिसका कि हाइट कितना है? हाइट है h, रेडियस है r। तो आप एक कोन अगर बनाइएगा सेम रेडियस का और सेम हाइट का, तो उसका जो वॉल्यूम होगा ना, 1/3 ऑफ द सिलेंडर होगा, क्योंकि देखिए इतनी जगह बच जाएगी। क्लियर है। तो बस यही है, 3 फॉर्मूलाज कोन के लिए हैं, एक एल का, एक टीएसए, एक सीएसए और एक वॉल्यूम। वॉल्यूम सिलेंडर ऑफ सेम रेडियस एंड सेम हाइट। हाँ, ये लिखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं स्फीयर में, है ना। तो स्फीयर में आते हैं, स्फीयर एज यू नो, है ना, अर्थ। तो यहाँ पे क्या है, आपको ये जो है ना शेप, ऐसा शेप है इसका कोई आपको ना टॉप या बॉटम मिलता ही नहीं है ना। आपके पास जो क्रिकेट बॉल है उसका कोई टॉप या बॉटम रहता है क्या? नहीं, उसका कोई टॉप या बॉटम, यू कांट डिस्टिंग्विश विच इज द टॉप विच इज द बॉटम। सो इसीलिए इसका कोई फेसेस ही नहीं है। दैट्स वाई इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया
और जो टोटल सरफेस एरिया है वो दोनों सेम होता है, राइट? और उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज व्हाट? रेडियस ऑफ द स्फीयर, है ना? क्योंकि इसमें टॉप बॉटम है नहीं, तो केवल जो आपका कर्व सरफेस है उसी का एरिया टोटल सरफेस एरिया के बराबर हो जाता है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। क्लियर यहां तक? ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हेमिस्फीयर में। तो हेमिस्फीयर कैसे बनता है? हेमिस्फीयर इज फॉर्म्ड by cutting the sphere into exactly 2 halves। तो जब हम exactly 2 halves कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको ना एक जो ये बेस है जो मेरा स्फीयर में एब्सेंट था, ये फेस हमको एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है? तो हमारे पास जो CSA ऑफ स्फीयर था, हम हेमिस्फीयर तो स्फीयर का हाफ है, तो 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का था, तो इसका तो हाफ हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन TSA में बदलाव आएगा। TSA में बदलाव क्या आएगा कि ये फॉर्मूला क्या होता था? CSA प्लस एरिया ऑफ फ्लोर एंड एरिया ऑफ सीलिंग। सीलिंग तो अभी भी नहीं है, बट एरिया ऑफ फ्लोर आ गया है। फ्लोर एक फेस, हमारे पास जो फ्लोर बोलेंगे वो आ चुका है, और ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या? TSA। TSA क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। डन। तो बस यही है। क्लियर? और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू स्फीयर का हाफ, 4/3 पाई आर क्यूब का हाफ, क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? तो ये वॉल्यूम भी हो गया हमारा हेमिस्फीयर का। 2/3 पाई आर क्यूब, TSA is 3 पाई आर स्क्वायर, CSA is 2 पाई आर स्क्वायर। Clear? Okay. Done? So these were the basic things that we needed to know in this. To solve this chapter, we need to know how these formulas have come. Clear? Okay. Let's move forward for our topics which are more important, and that is conversion of solids. That is conversion of solids. Now what is conversion of solid? See, you know that solids can be changed into shape, solids can be converted to liquid and all that, है ना? But the basic concept behind this, as you can see, I have a mug over here. Mug का कुछ volume होगा, है ना? Now, if I change the mug into some other shape, है ना? Some other shape, I am changing a mug to a donut. So obviously the surface area will change, but will the volume change? No, volume will remain the same. You are just changing the shape, right? But the amount of material that was used in making the mug, the same amount of material is used in making the donut also. As you can see here also, the ice was kept. Ice had some volume, but after melting, it's in the glass now. So has the mass gone out, evaporated? No, it's all in the glass only. So the volume will not change. Clear or not clear? ठीक है? So whether you change the shape of the solid from one shape to another, the volume will not change. This is what you have to, like, you understand. This teapot had some tea, right? Sufficient enough to be poured into the glass, into the cups.
right? So when you are pouring the tea into the cups, so what formula you can make? Provided that the teapot is completely empty after filling the glass, after filling the cups, volume of tea in teapot. Teapot में tea था. Now, likewise, if you poured the tea in 2 cups, है ना, and after that no tea is left in the teapot, so what you can make out? Volume of tea in teapot is equal to 2 into volume of tea in cups. Why did I multiply 2? Because the tea was filled in 2 cups, right? Volume of tea in cups, right? So same, the amount of tea that was in the teapot, that is only into the cups, है ना? And since there is no tea left in the teapot, so all the tea in the teapot is poured into these 2 cups. So obviously the volume of the tea in the teapot is equal to the volume of tea in these 2 cups, है ना? And the 2 cups are same. अगर 2 कप दोनों का शेप अलग अलग होता है, अलग अलग होता वॉल्यूम, तो अब हम अलग अलग निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है. I multiplied 2. So have you understood this? Clear or not clear? ठीक है. The same way, another example, like here you have chocolate. The chocolate is of cube shape, right? Cube shape. But what you do, you melt the chocolate. So you make it liquid, and after that you try to make the chocolate in sphere. Clear? So will the volume change? No, unless the material is wasted, and always we'll assume that the no material is wasted. So if you have 10 cubes over here, है ना, the volume of, what do you obtain? This equation you have to learn how to write. Volume of 1 cube, 1 chocolate cube, है ना, into 10 cubes you were having, will be equal to volume of sphere, because it is a sphere. And how many spheres you made? So you will count it: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Okay, so because you made 22 spheres out of this 10 cubes, so volume of 1 chocolate cube into 10 equal to volume of sphere into 22. Clear? Huh? Always there will be written in the question, no material is wasted, or even if material will be wasted, it will be given ki what amount of material is wasted. Clear or not clear? ठीक है. So this equation can you write, है ना? यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक ही क्यूब हो. अब एक ही क्यूब से आप अगर 5 बना पा रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 sphere into 5. That's what. This is what equation. If you are able to write this equation, then after that your work becomes very easy, because you know the formula of volume of cube, you know the volume of sphere. Just put the values and get the answer. है ना? Clear? That's what. You need to write the equation. That's it. ठीक है? So I think you have understood the conversion of solids. है ना? This is what is the conversion of solids. Clear? You need to understand. These are all practical situations. है ना? A metal is recast. Recast means, see, this is what is casting. You melt one thing. How are steel appliances or steel materials made? Firstly, iron. We obtain steel from iron. We melt iron, and then we pour into the molds as you want to get it. So the molds are poured, liquid, hot metal is poured. Similarly, hot chocolate is poured. Whichever mold you will put, it will take the shape of that, like you do it for ice.
You put in the shape of the mold, you put it in a glass and put the glass in the freezer, the ice will take the shape of a glass. Similarly, that's what recasting is. Clear? So surface area of combined solids. Now this is another most important topic, surface area of combined solids. Clear? Okay. Now what shape can you see here? You can see one cube, but a cube has one circular hole at the top, right? Now if it has a hole at the top, can you tell me the total surface area of this cube? Can you tell me? Okay. Thing is that it is a cube, right? So इसका तो a square, इसका भी a square, इसका भी a square, इसका भी a square, इसका भी a square. But ये जो सरफेस है यहाँ पे तो होल है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं. तो इसका a स्क्वायर कब होता? जब ये होल उस पे नहीं होता. तो हमको तो ये होल के साथ फॉर्मूला नहीं ना पता है. So what you will do? What we'll do is we'll find out surface area of the new cube or the of this figure, surface area of this figure, total, let's say total, है ना, total surface area of this figure, what it will be, 5a square. उसमें तो confirmation है ना, but इसमें ये circular hole है of radius r. What kind of hole it is? Circular hole, right? You need to find the area of this face. Rest all other faces have no problem, but this face, top face, is a problem. So a square तो तब होता जब हम उसका पूरा होता, यहाँ पे होल नहीं होता. तो करना क्या, पूरा ले लीजिए और उसमें से होल का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ना. So you will get the surface area of this figure. Simple. Is it clear? This will be my final answer, right? Because there is a hole, there is no surface for this amount of part, so just subtract this from the whole surface area. A square hota without hole, so just subtract the area of the circle from that a square. You'll get the answer, right? So this is what is the surface area of combined solids. Clear? Little amount of common sense we have to apply. Okay, now we have a cube, like this. So what we can see, we have a cube and we have a cylinder over a cube, so it is a combined shape which is cube plus cylinder, तो अभी cube plus cylinder है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? Now again the same divide and rule policy we have to apply. Divide and rule. देखो, पहली बात, ये a स्क्वायर, ये फेस भी a स्क्वायर, ये फेस भी a स्क्वायर, ये फेस भी a स्क्वायर, है ना? हो गया क्लियर, है ना? और ये बेस भी था, ये फ्रंट भी a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, है ना? ओके, तो 5 मैं यहाँ पे भी कर दे रहा हूँ. ये a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ये a स्क्वायर और ये भी a स्क्वायर. क्लियर? ओके. तो यहाँ पे डिवाइड एंड रूल के हमको जो भी प्रॉब्लम वो टॉप, तो हम टॉप फेस को अलग करते. तो 5a स्क्वायर तो हमारा डन है ना, 5a स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है. जो a स्क्वायर में उसमें प्रॉब्लम है ना, ध्यान से देखिए. क्या है कि जब ये इसके ऊपर है ना, तो ये भी तो मेरा नया सरफेस बन गया ना. दिस इज ऑल्सो माई न्यू सरफेस, राइट? बट ये जो पार्ट ये कवर करके रखा था, ये जो सर्कुलर पार्ट सिलेंडर, वो तो हमको नहीं दिख रहा था. हमको सिलेंडर दिख रहा है, बट सिलेंडर जो सर्कुलर पार्ट कवर करके रखा है, दैट आई एम नॉट एबल टू सी. दैट इज नॉट माई सरफेस. I am able to see what? I am able to see this part, but जो सर्कुलर पार्ट सिलेंडर कवर करके रखा है वो तो मेरे को नहीं दिख रहा है ना. आई एम एबल टू सी द सिलेंडर. तो मेरा जो नया सरफेस एरिया क्या होगा? टॉप पार्ट का मैं बस बात कर रहा हूं.
ए स्क्वायर, है ना, प्लस ये भी ना हमको दिखेगा, सिलेंडर का टॉप भी तो हमको दिख रहा है ना, अगर ये सॉलिड सिलेंडर है तो सॉलिड सिलेंडर है ये, है ना। तो अभी सॉलिड सिलेंडर का बताइए क्या होता था, टोटल सरफेस एरिया लेंगे, बट यहाँ पे हमको इसका जो बॉटम है वो तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था फॉर्मूला को याद नहीं करना है, समझना है कैसे आया था। तो पहली बात तो कर्व सरफेस ले लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, प्लस टॉप तो दिख रहा है ना, टॉप का सर्कल, तो वो भी ले लेंगे, है ना। बॉटम तो लेंगे नहीं क्योंकि बॉटम का सरफेस हमको नहीं दिख रहा था, लेकिन हम लोग ये वाले में ये सिलेंडर तो ऐड कर दिए, बट स्क्वायर में जब हम लोग ए स्क्वायर ले रहे हैं तो ये पार्ट भी उसमें इंक्लूडेड दिखा रहा है, तो ये इसमें से माइनस कितना करना पड़ेगा, ए स्क्वायर में से क्या माइनस करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो हमारा जो सरफेस एरिया होगा ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ये टॉप फेस का हमारा सरफेस निकलेगा, और 5a स्क्वायर तो था ही। क्लियर हो रही है बात। तो इस तरह से आपको कस्टमाइज्ड फॉर्मूला बनाना पड़ेगा फॉर एवरी केस, है ना। वो देखना पड़ेगा कि किस टाइप का शेप है, किससे कंबाइंड हो रहा है, और आपको जो नॉन फॉर्मूलाज हैं उनमें से ऐसा सिलेंडर और क्यूब का कॉम्बिनेशन दे रहा है, तो जो बेसिक हम लोग शेप्स अभी हम लोग फॉर्मूला सारा रिवाइज किए उनमें से ही आएगा। क्लियर हो रही है बात, है ना। यहाँ पे कंसेप्ट ये था कि हमको ये, अगर हम जब ए स्क्वायर ले रहे हैं तो ये तो पूरा एरिया इंक्लूडेड है ना, लेकिन उस पूरे एरिया में से हमको तो सर्कल दिख नहीं रहा था, है ना, पूरे एरिया में से। आई वॉज एबल टू सी दिस, ए स्क्वायर जब लेते थे तो पूरा एरिया होता है, उसमें से हमको तो ये दिख ही नहीं रहा था ना, तो इसको तो माइनस करना पड़ेगा। ये कितना था, पाई आर स्क्वायर, सो आई सबट्रैक्टेड दैट। और उसके बाद हम सिलेंडर का कर्व सरफेस दिख रहा था, सिलेंडर का टॉप दिख रहा था, सिलेंडर का बॉटम भी नहीं दिख रहा था, तो हम सिलेंडर का बॉटम तो ऐड ही नहीं किए, लेकिन ये सर्कल को स्क्वायर में से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर और नॉट क्लियर, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है इसका। क्लियर। अभी जैसे ये क्यूब है मेरा, है ना, ये बिगर क्यूब, ये स्मॉलर क्यूब, तो इसका मान लेते हैं हम, ये है ए, कैपिटल ए, है ना, ठीक है। तो अभी इसका क्या हो जाएगा, ए 6a स्क्वायर होगा सरफेस एरिया, है ना। अब लाइक कि हमारा ये क्यूब इसके ऊपर आ गया, इसका कितना था, इसका था a, सारा कुछ फिर से वही बात, है ना। सारा फेस में कोई दिक्कत नहीं, टॉप फेस में देखिए दिक्कत क्या हो गई, टॉप फेस में ये दिक्कत हो गई कि आप जब क्यूब को रख दिए तो आपको, आप 6a स्क्वायर जब ले रहे हैं तो उसमें ये वाला पार्ट तो आपको दिख नहीं रहा है ना, दिख रहा है क्या, आर यू एबल टू सी दिस, नो। तो हमको ये वाला माइनस करना पड़ेगा, और हमको तो ये एक नया फेस, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये दिखने लगा है। तो अभी हमको ये क्यूब का कितना फेसेस दिख रहा है, 5, तो हम माइनस करेंगे इससे स्मॉल ए स्क्वायर, समझ में आ रही है बात, और ऐड क्या करेंगे, 5a स्क्वायर। 6a स्क्वायर में से एक 5a स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं था, छठा a स्क्वायर जो था, 6a स्क्वायर जो टॉप फेस था, उसमें से हमको स्मॉल a स्क्वायर माइनस करना पड़ा, और बाकी ये जो 5 फेसेस हमको दिख रहे हैं वो तो ऐड करेंगे ना। क्लियर है। सो दिस विल बी द TSA ऑफ द न्यू शेप। क्लियर है। तो बस यही कंसेप्ट है, ठीक। अब जैसे ये शेप है ना, तो ये शेप में क्या है, आपको कौन सा 2 शेप्स मिल रहा है, ये कंबाइंड शेप है, तो ये क्या है, ये एक कोन है, और उसके ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। अगर आपको बोला जाए फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस शेप, आपको क्या क्या दिख रहा है बताइए। आपको दिख रहा है
ये कोन का कर्व सरफेस एरिया, तो बस कोन का कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे, कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना है, कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल। और कुछ आपको दिख रहा है क्या, कोन का ये सरफेस आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, आपको हेमिस्फीयर का भी ये सरफेस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है, आपको तो बस यही कर्व सरफेस दिख रहा है ना बस, तो बस हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया ही ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस शेप। समझ में आ रही, यहाँ पे माइनस का कोई बात नहीं हुआ, डन, ओके। सो दिस इज द कंसेप्ट। अगर आपको मान लीजिए बोला जाए कि वॉल्यूम निकालो, तो ये तो आसान है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना, क्लियर है। तो यही है कंबाइंड सॉलिड्स का केस, है ना, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, क्लियर है ना। तो वॉल्यूम ऑफ ये शेप क्या होगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर है ना। ये स्पेस जितना ऑक्यूपाई करेगा प्लस ये स्पेस जितना ऑक्यूपाई करेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, डन। तो यही तो कंसेप्ट है ना, क्लियर और नॉट क्लियर, ओके। आई विल शो यू बाय वन मोर थिंग, है ना, यहाँ पे अभी ये है, अभी मान लीजिए हमको इसका वॉल्यूम निकालना है ना, ये इसका लिड ओपन है, इसका लिड क्या है, ओपन है, हमको इसका वॉल्यूम निकालना है, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा ना, अगर ये सिर्फ क्यूब होता तो हमारा वॉल्यूम क्या होता, एक क्यूब, इतना वॉल्यूम स्टोर कर सकते, लेकिन अभी तो सिलेंडर भी है, और सिलेंडर का मान लीजिए रेडियस है आर, और इसका जो हाइट है वो है एच, तो क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस कर देंगे ना, क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर एच, हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। समझ में आ रही है बात, क्लियर और नॉट क्लियर ना। अभी देखिए ये शेप है ना, तो ये शेप में क्या है, ये शेप में हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर थोड़ा निकला हुआ है सिलेंडर, है ना, क्यूब के ऊपर निकला हुआ है, अंदर भी है और बाहर भी है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, है ना, तो बस इस तरह का ही कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आएगा जो आपको सोचना है, समझना है और करना है, क्लियर है, ठीक है। तो एक बार इसका शेप को ले आते हैं, हाँ। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही बात कि आपको जो ये वाला पार्ट है, और ये जो इसके अंदर है, अगर ये पूरा क्लोज्ड है तब तो आपको दिखेगा ही नहीं, अगर ये सॉलिड है तब तो आपको दिखेगा ही नहीं कुछ, तो फिर इतना का आपको निकालना होगा। आपको 5a स्क्वायर तो आपका निकल गया है, ये सर्कल को आपको माइनस करना होगा, और ये सरफेस एरिया जो कर्व सरफेस एरिया और ये जो टॉप है वो ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो इतना हाइट मेरा h होगा, तो 5a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कर लिए, तो सॉरी 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कर लिए, प्लस 2 पाई आर एच, बस इतना का हाइट मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा हो सकता है h1 हो, मैं सिर्फ इतना का हाइट लूंगा ना, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, टॉप का तो हमको दिख रहा था, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला बनाना पड़ेगा हमको, और कुछ नहीं करना है, डन, बस, ओके। सो गाजर का हलवा तो सबका फेवरेट है, होता ही है ना, फेवरेट डिश। सो बट ये कौन सा शेप आपको रिजेंबल कर रहा है, क्या ये कुछ कोन जैसा लग रहा है क्या, है ना, कोन जैसा लग रहा है ना। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू रीड इज फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन, क्लियर, वी आर गोइंग टू रीड फ्रस्टम ऑफ कोन, है ना। तो ये गाजर तो देख लीजिए कोन शेप का है ना। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम
आई एम कटिंग द कोन इज द प्लेन विच इज पैरेलल टू दिस प्लेन, है ना। और अगर हम इस तरह से रख लें, ये मेरा बेस हो जाएगा. आई कांट कीप इट लाइक दिस, आई हैव टू होल्ड इन द हैंड. आई हैव केप्ट द बेस, दिस माई बेस, ये मेरा रेडियस. अगर हम पैरेलल एक प्लेन ऐसा ले, है ना, दिस नाइफ इज द प्लेन एंड व्हाट हैव डन, ये ना पैरेलल कट किया इसके, ये पैरेलल कट किया प्लेन. तो पैरेलल कट करेंगे, है ना. तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमको कुछ पैरेलल कट किया तो हमको क्या मिल गया, कुछ इस तरह का शेप मिलेगा, मिल जाएगा. एंड दिस शेप इज ओनली कॉल्ड एज frustum of cone, a figure or a solid obtained such that from a cone such that a plane parallel to the base, है ना, is cut, है ना, such that the cone is cut with a plane parallel to the base. तो हमको क्या मिल जाएगा, फ्रस्टम. तो यहाँ पे इसका रेडियस रहा होगा कुछ R2, इसका रेडियस R1. ऑब्वियसली ये दोनों रेडियस सेम तो नहीं ना होगा. तो ये जैसे मैं मान ले रहा हूं O', ये O, ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये H, और ये स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम, ये हाइट ऑफ द फ्रस्टम. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द फ्रस्टम ऑफ द कोन. समझ में आ गई बात, है ना. इस पार्ट को नेग्लेक्ट कर देना है, इसको मैं हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं, हम लोग बस इसको यूज कर रहे हैं कोन का. तो ये फ्रस्टम ऑफ कोन बन गया. ठीक है. दिस बकेट इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एग्जांपल ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन ओनली. क्लियर. ओके. ऑल्सो दिस इज द फ्रस्टम ऑफ कोन, है ना. दिस पार्ट इज नाउ रिमूव फ्रॉम इट, है ना. ये रिमूव हो गया तो यही बचा, ये R2, ये R1, है ना, ये H. दिस इज ऑल्सो फ्रस्टम, है ना. ये लोअर पार्ट नीचे है, बट स्टिल इट विल बी कॉल्ड फ्रस्टम ओनली, राइट. तो बस यही है फ्रस्टम का एग्जांपल. तो अब ना हम लोग सारा वॉल्यूम ऑन सरफेस एरिया तो जानते हैं. लेट्स डिराइव वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन. ठीक है. ये डिराइव करते हैं, इसका डेरिवेशन देखते हैं. तो पहली बात कि कोन बना लेते हैं एक. ये बन गया मेरा कोन. नॉमेनक्लेचर कर देते हैं. ये है मेरा A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C. स्ट्रेट लाइन, ये मेरा स्ट्रेट लाइन, ये है परपेंडिकुलर, ये हाइट है मेरा, ये है O, है ना. और ये OC मेरा क्या है, रेडियस, इसको बोलते हैं R1. आई हैव कट विथ अ प्लेन विच इज पैरेलल टू BC. तो ये पॉइंट मेरा क्या होगा, OC. एंड बिकॉज दिस इज पैरेलल टू दिस, तो ये 90 है, तो ये एंगल भी क्या होगा, 90 होगा. कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. नाउ आई नेम दिस पॉइंट एज D एंड दिस पॉइंट एज E. यहां तक भी क्लियर है. ओके. ये जो रेडियस होगा इसको मैं लेता हूं R2. ठीक है. तो मैं एक बार नाम लिख देता हूं सबका. लेट AC be L1, slant height of the bigger cone. Let AO be the height of the cone. Bigger cone क्या है, कोन ही है ना. अभी तक तो AO हम लोग मान लेते हैं उसको H1. ठीक. ना फ्रस्टम का ये जो है ना, ये फ्रस्टम है ना, ऊपर वाला पार्ट तो हट जाएगा, अब रूम उठा. तो ये स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम को मैं मान लेता हूं L.
तो डी सी इक्वल टू एल, और ये फ्रस्टम का जो हाइट है उसको मैं मान लेता हूँ h, मीन्स दिस पार्ट, दिस लेंथ व्हाट आई हैव टेकन एज h. एनी इश्यूज? नो इश्यूज. ठीक है, तो ये जो था मेरा था, ये यहां से यहाँ कितना था मेरा, ये था L1, ये L1 ये L, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा L1 माइनस L. सिमिलरली ये क्या होगा, ये होगा, क्योंकि ये पूरा मेरा यहां से यहां तक है h, तो ये होगा, सॉरी h1 है, h1 माइनस h, क्योंकि ये h है. क्लियर हो गई बात यहाँ तक सब नॉनक्लेचर पूरा. चलिए हम लोग इसको प्रूव करेंगे और या इसका फॉर्मूला फाइंड करेंगे बाय द मेथड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, है ना. सिमिलर ट्रायंगल सबको याद होगा ही, है ना. तो अभी हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े सब में सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज हुआ है, तो सिमिलर ट्रायंगल्स आर इम्पोर्टेंट, है ना. तो चलिए हम लोग दो ट्रायंगल्स लेते हैं, वो दो ट्रायंगल्स कौन से होंगे वो देख लेते हैं. तो फर्स्ट ट्रायंगल विल बी ट्रायंगल AOC, in which this is 90 degree. The second triangle will be triangle AOD, AO dash D, AO dash D, जहां पे ये भी क्या है 90 डिग्री. सो O dash इक्वल टू A हमको साफ दिख रहा है, O dash इक्वल टू O एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, y गिवन है 90. ओके, क्या एंगल A दोनों ट्रायंगल में कॉमन है क्या? एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन. Is it clear? Okay, so what we have triangle AOC similar to triangle AO dash D. इतना तो पता है, बाय अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है बाय ए कोरोलरी. ठीक है, ए कोरोलरी. एंड बिकॉज द ट्रायंगल्स आर सिमिलर सो देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल. तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल कैसे हो जाएगा, AO बाई AO डैश इक्वल टू OC बाई फर्स्ट बाई फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड बाई सेकेंड इक्वल टू थर्ड बाई थर्ड. और ये फर्स्ट ऐसे डिसाइड नहीं हुआ क्योंकि A के बराबर A था तो पहला के साथ पहला, करस्पॉन्डेंस रूल. O इक्वल टू O डैश, दैट्स वाई, है ना. तो OC बाई O डैश D इक्वल टू AC बाई AD, यही निकला. ठीक है ना. अभी ध्यान से देख के पुट करना वैल्यू. AO कितना है, AO का वैल्यू है H1 माइनस H. AO डैश कितना है, नो AO, सॉरी आई जस्ट डिड अ मिस्टेक, है ना. AO है मेरा, AO मेरा ये पूरा है AO, है ना. वो है H1 है. तो AO है H1 डिवाइड बाई, है ना, H1 माइनस H. ओके ना. OC कितना है, OC इज R1. O डैश D कितना है, R2. ओके, AC कितना है, AC है L1. AD कितना है, AD है L1 माइनस L. क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां तक डन है. ओके, सो यहां तक तो समझ में आ गया. अब इसके आगे क्या, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं. पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पे H1 बाई H1 माइनस H इक्वल टू R1 बाई R2 इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई थिंक L1 माइनस L है. ठीक है, यहां तक हो गया.
ओके, सो इसके आगे क्या करेंगे हम लोग इसके आगे क्या करेंगे कि हम लोग लेंगे इसको और रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। h1 माइनस h बाई h1 इक्वल टू r2 बाई r1 इक्वल टू L1 माइनस L बाई L1। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नाउ व्हाट, h1 बाई h1 माइनस h बाई h1 इक्वल टू r2 बाई r1 इक्वल टू L1 बाई L1 माइनस L बाई L1। h1 सेम, सो 1 हो जाएगा, 1 बाई h माइनस h1 इक्वल टू r2 बाई r1 इक्वल टू 1 माइनस L बाई L1। यहां तक क्लियर है, ठीक है। ये स्टेप्स क्लियर है, जस्ट ये दोनों कट गया, 1 बच गया, है ना, ये 1 बच गया यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब एक एक करके लेते हैं। अब है ना 1 माइनस h बाई h1 इक्वल टू r2 बाई r1, ठीक है। अब क्या करते हैं, 1 माइनस r2 बाई r1 कर लिए, तो h बाई r2 बाई r1 के उधर लेके आ गए और ये इधर चला गया। हो गया यहां तक, ठीक है, क्लियर है। नाउ एलसीएम लेते हैं, क्या होगा, r1 माइनस r2 बाई r1 इक्वल टू क्या निकल जाएगा, h बाई h1। तो यहाँ पे क्या हो गया, r1 माइनस r2 बाई r1 इंटू h1 इक्वल टू वॉट, h। क्लियर है ना, डन यहां तक, है ना। या फिर हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि h1 इक्वल टू h इंटू r1 बाई r1 माइनस r2, ठीक है, क्लियर है। तो सेम हम लोग किसके लिए करेंगे, L1 के लिए भी। तो यहाँ पे करेंगे 1 माइनस L बाई L1 इक्वल टू R2 बाई R1, 1 माइनस R इधर ले जाएंगे, R2 बाई R1 इक्वल टू L बाई L1, अगेन R1 माइनस R2 बाई R1 इक्वल टू L बाई L1, ठीक है। हम लोग L1 निकाल लें या देख लेते हैं, R1 माइनस R2 इंटू L1 बाई R1 इक्वल टू L, और वी कैन राइट एज L1 इक्वल टू L इंटू R1 बाई R1 माइनस R2। निकल गया L1 और H1 का वैल्यू निकल गया, क्लियर। तो ये L1 क्या था, ये था L1, और H1 क्या था, ये बिगर वन। सो आई एम फाइंडिंग द स्लैंट हाइट ऑफ द बिगर कोन, किसके टर्म्स में, स्लैंट हाइट ऑफ द फर्स्ट टर्म, है ना, जिसका हमको वॉल्यूम निकालना उसके टर्म में, L और H के टर्म्स में निकाल रहा हूं, क्लियर है। ओके, नाउ आपको यहाँ पे क्या दो कोण दिख रहा है, क्या मेरे को दो कोण दिख रहा है, एक है ABC कोण और एक है AED कोण। AED कोण रिमूव होने वाला है बट स्टिल वो कोण है, तो हम लोग वॉल्यूम इसी तरह से निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोण ABC माइनस वॉल्यूम ऑफ कोण AED इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म। समझ में आ गई बात, वॉल्यूम ऑफ कोण ABC माइनस वॉल्यूम ऑफ कोण AED, क्लियर है। तो बस विल यूज दिस ओनली, है ना। तो एक बार हम लोग और कर लेते हैं, हम लोग को यहाँ पे जो स्मॉलर कोण है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमको H1 माइनस H, है ना, उसका हाइट और उसका L1 माइनस L का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग निकाल लेते हैं डायमेंशंस ऑफ स्मॉलर कोण, और
डायमेंशन ऑफ कोन टू बी कट ऑफ। ठीक है, तो वो क्या था, L1 माइनस L था। तो L1 क्या है मेरा, LR1 बाई R1 माइनस R2 माइनस L है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, LR1 माइनस LR1 प्लस LR2, एल्सियम लेके रहेंगे तो यही आ जाएगा भाई R1 माइनस R2। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जो निकला वो हो जाएगा L1 माइनस L का वैल्यू निकला LR2 बाई R1 माइनस R2। क्लियर है यहां तक? ठीक है, LR2 बाई R1 माइनस R2। ठीक है, सिमिलरली H के साथ भी है ना, यहीं पे कर लेता हूं। तो H का क्या होगा, H1 माइनस H, ये क्या होगा, H1 कितना आया था, HR1 बाई R1 माइनस R2 माइनस H। तो ये हो जाएगा फिर से वही HR1 माइनस HR1 प्लस HR2 बाई R1 माइनस R2। तो यहाँ पे भी ये यही आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, HR2 बाई R1 माइनस R2 किसके बराबर, H1 माइनस H, और द हाइट ऑफ द स्मॉलर कोन का ये वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा, है ना, मेरे पास वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला निकालने के लिए हमको क्या है, वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, ये कर दूंगा मैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अभी बिगर कोन का रेडियस कितना है, बिगर कोन का रेडियस है R1 और बिगर आर स्क्वायर H ना, तो H1 है ना, और ये कितना है H1 माइनस H और L1 माइनस L। ये स्मॉलर कोन है मेरा, AED मेरा स्मॉलर कोन है उसका। ठीक है, तो ये तो निकला है मेरा H1 माइनस H और L1 माइनस L, वो बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पे देखते, ये है मेरा क्या, पाई आर स्क्वायर H1 माइनस 1/3 इंटू पाई इंटू, है ना, तो ये तो R2 था, R2 स्क्वायर और इंटू क्या था, ध्यान से देख लीजिए, ये था H1 माइनस H, लिखेंगे H1 माइनस H। इज इट क्लियर? ओके, अब वैल्यूज को पुट करते जाते हैं। तो यहाँ पे करेंगे 1/3 इंटू पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 माइनस 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू H1 माइनस H। अभी H1 माइनस H का वैल्यू क्या था, है ना, यहाँ निकाले थे ना, H1 माइनस H R2 बाई R1 माइनस R2। H1 माइनस H इक्वल टू H R2 बाई R1 माइनस R2। इसके बदले हम लोग पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, H R2 बाई, यही था ना, H R2 बाई R1 माइनस R2। ठीक है, तो पहले इधर से 1/3 पाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा क्या, R1 स्क्वायर H1
माइनस R2 स्क्वायर इंटू HR2। क्लियर है यहां तक? ठीक है, H1 R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर इंटू HR2 बाई R1 माइनस R2। ठीक है, क्लियर। तो H1 फिर से H1 आ रहा है, हम लोग H1 को किसके टर्म्स में ट्राई करने की कोशिश करेंगे? H1 को हम लोग पुट करने की कोशिश करेंगे H के टर्म्स में। तो फिर से वही बात, H1 जो है यहाँ पे देखिए क्या आया था, H1 है HR1 बाई R1 माइनस R2। तो कर देते हैं पुट, है ना। तो यह था HR1 बाई R1 माइनस R2 माइनस R2 स्क्वायर इंटू HR2 बाई R1 माइनस R2। हो गया क्लियर? तो बस फिर फॉर्मूला हमारा आ ही गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, HR1 क्यूब बाई R1 माइनस R2 माइनस HR2 क्यूब बाई R1 माइनस R2। यहाँ तक हो गया क्लियर? ओके, अब और फर्दर सॉल्व। तो 1/3 इंटू पाई, अब तो h भी कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब डिवाइड बाई R1 माइनस R2। तो अभी हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर सकते हैं ना, a क्यूब माइनस b क्यूब के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई h/3 और हो जाएगा R1 माइनस R2, है ना। a क्यूब माइनस b क्यूब का a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab डिवाइड बाई R1 माइनस R2। तो भाई आ गया फॉर्मूला, तो ये दोनों कट जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का पाई h/3 इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू पाई इंटू h इंटू R1 स्क्वायर, बड़ा वाला रेडियस का स्क्वायर, छोटा वाला रेडियस का स्क्वायर प्लस बड़ा रेडियस इंटू छोटा रेडियस। ये होता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, h इज हाइट ऑफ द फ्रस्टम, कैपिटल R1 इज द बिगर रेडियस, है ना। ये है R1, ये है R2 और ये है h, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूम का, 1/3 इंटू पाई इंटू h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, है ना, इजी है ना, क्लियर है। R2 का स्क्वायर है, डन। तो ये है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वेयर R2 इज दिस, R1 इज दिस। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, बस यही तो करना ही है ना, और तो कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, है ना। कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, है ना। वॉल्यूम निकाल लिए, अब कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, सो लेट्स फाइंड आउट कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर से वही फॉर्मूला ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोन
माइनस द कोन कट ऑफ, है ना, हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। क्लियर है? तो बिगर कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई R1 था ना और L1 था, ठीक है, माइनस पाई कट ऑफ कोन का क्या था, R2 था, और याद है ना L1 माइनस L था, ठीक है ना। देख लीजिए एक बार, नहीं याद है तो ये क्या था, स्मॉलर कोन का L1 माइनस AD कितना था, L1 माइनस L, डन, है ना, यही था। ओके, नाउ फिर से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को याद है ना वैल्यू हम लोग लिए थे, L1 का यहाँ पे कुछ वैल्यू था, L1 था LR1 बाई R1 माइनस R2। तो हम लोग ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग को L जो है वो फ्रस्टम का है, तो फ्रस्टम की टर्म में लाना है ना। तो यहाँ पे क्या है, पाई R1, L1 के जगह क्या था, LR1 बाई R1 माइनस R2, क्लियर है, माइनस पाई R2। अभी L1 माइनस L का क्या वैल्यू था, देखिए L1 माइनस L का था LR2 बाई R1 माइनस R2, ये था LR2 बाई R1 माइनस R2। क्लियर हो गई बात? ओके, नेक्स्ट, तो इसमें हम लोग क्या ले लेंगे, ये हो जाएगा मेरा पाई L R1 स्क्वायर बाई R1 माइनस R2 माइनस पाई L R2 स्क्वायर बाई R1 माइनस R2। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं फिर से क्या ले लूंगा, पाई L को कॉमन, यहाँ बच जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बाई R1 माइनस R2, ये होगा। तो ये हो जाएगा पाई L R1 माइनस R2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए माइनस बी, ए प्लस बी, बस यही तो करना है। दिस विल बी कैंसल्ड। इज इट क्लियर, है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई L R1 प्लस R2, है ना। फ्रस्टम का ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। किसका हो जाएगा फ्रस्टम का, कर्व सरफेस एरिया। बट टोटल सरफेस एरिया तो निकालना बाकी है ना। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा CSA प्लस टॉप फेस एरिया ऑफ टॉप ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ बॉटम ऑफ फ्रस्टम। तो CSA कितना मेरा, पाई L R1 प्लस R2। एरिया ऑफ टॉप क्या होगा, एरिया ऑफ टॉप, ये सर्कल है ना, तो एरिया ऑफ टॉप मतलब पाई R2 स्क्वायर एंड एरिया ऑफ बॉटम मतलब पाई R1 स्क्वायर, है ना। तो बस यही तो कर देना है, तो कर देना है ऐड पाई R2 स्क्वायर प्लस पाई R1 स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो गया फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, और ये हो गया CSA ऑफ फ्रस्टम, पाई L R1 प्लस R2, है ना। आसान है। आपका कोन का होता है पाई RL, तो फ्रस्टम में 2 रेडियस है, तो पाई R1 प्लस R2 इंटू L। क्लियर? बस, है ना। क्लियर है यहां तक? डन। ओके, नाउ द थिंग इज, कभी कभी क्या होता है ना कि L का वैल्यू भी तो निकालना पड़ेगा। L का वैल्यू, तो L का वैल्यू निकालने के लिए ये देखिए,
ये जो डिस्टेंस है ये कितना है मेरा, ये ऑब्वियस सी बात है, ये है R1। ये कितना है R1। ओके, नाउ कौन सा कलर लूं, हाँ, ये डिस्टेंस कितना है, ये है R2। ये कितना है, ये है R2। ठीक, चलिए यहाँ भी ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, ये है H। यहाँ O से O' तक H है ना। ओके, चलिए भी मान लिया। तो क्या करता हूं मैं यहां से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो जो ये डिस्टेंस है मेरा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों सेम हो जाएगा ना, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना था, ये R2 था। तो ये जो ब्लू शेडेड है ये भी क्या हो जाएगा, R2। ठीक है, तो इतना बच जाएगा। तो ये जो बच जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा येलो था R1, तो येलो माइनस ब्लू R1 माइनस R2, और ये तो H, ये भी H। तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना। तो इन ट्रायंगल देखिए, हाइपोटेनस स्क्वायर, EB स्क्वायर, एक्चुअली EB ना DC के बराबर मेरा फ्रस्टम का स्लैंट हाइट है। ठीक है ना, फ्रस्टम का क्या है, स्लैंट हाइट है। तो L इक्वल टू L स्क्वायर बोल लें या L इक्वल टू अंडर रूट बोल लो, क्या होगा, H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका स्लैंट हाइट का भी फॉर्मूला हो गया। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रस्टम। ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं सारा फॉर्मूला एक बार बता दूं फिर से। तो फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का, फ्रस्टम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 1/3 इंटू पाई इंटू H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक, ओके। CSA पाई L R1 प्लस R2। ठीक है, नेक्स्ट TSA, TSA क्या होगा, पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। क्लियर हो गया। और जहां पे ये है फ्रस्टम का डायग्राम, दिस इज द R2, this is R1, this is H, this is L, right। और L का फॉर्मूला है अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। क्लियर है। तो बस इतना ही तो करना है, ठीक है। सो जस्ट रिवाइज द डेरिवेशन वंस अगेन, है ना, ठीक है, बाकी तो हो जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू। If you have any doubts, send it to me. Okay, ठीक है, or do ask in the comment section.